آج کے او ایم آر کی ابتدا آپ کے لیے ایک بہت ہی اطمینان بخش خوشگوار خبر سے کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اب پاکستان میں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ ٹھوس شواہد اور ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس انتہائی اہم اور خوشگوار سفر کی ابتدا تو گزشتہ سال مئی میں ہوئی تھی، جب پاکستان نے اپنے ازلی دشمن بھارت کو 5 روزہ جنگ میں فیصلہ کن شکست دی تھی، اور اب پاکستان بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ ناچنے والے اندرونی دہشت گردوں کا بڑی کامیابی سے صفایا کر رہا ہے۔ اس اچھی خبر کے ساتھ میں افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو پوری پاکستانی قوم کی جانب سے تھینک یو کہنا چاہتا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف اس فیصلہ کن کامیابی کے سفر میں کل بھی خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد پر 13 دہشت گردوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جو اسی سلسلے کی کڑی ہے جو آپریشن غزب الحق سے شروع ہوا تھا۔ فیبرری کے آخر میں شروع ہونے والے اس آپریشن نے الحمدللہ دہشت گردوں کی اب کمر توڑ دی ہے۔ صرف 2 مہینوں میں حملوں اور تخریب کاری کے واقعات کا گراف تیزی سے گر رہا ہے۔ تمام اعداد و شمار اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ ڈیٹا کے مطابق اپریل کے پہلے ہفتے میں دہشت گرد حملوں کی تعداد مارچ کے آخری ہفتے کے مقابلے میں 50% کم ہو گئی تھی۔ مارچ کے آخری ہفتے میں ملک بھر میں 33 دہشت گرد حملے ہوئے، جو اپریل کے آغاز میں 16 حملوں تک محدود رہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق فیبرری کے نسبت مارچ میں دہشت گردی کی ہلاکتوں میں 35% نمایاں کمی ہوئی تھی۔ بلوچستان میں ہلاکتوں کی تعداد میں 79%، جبکہ کے پی میں 42% کمی ہوئی۔ The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. اپریل میں یہ کامیابی کا سفر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دہشت گردوں کی کمر سب سے زیادہ پچھلے مہینے میں یعنی کہ اپریل کے مہینے میں ہم نے ٹوٹتی ہوئی دیکھی۔ اپریل میں سیکیورٹی فورسز نے کے پی اور بلوچستان میں آئی بی او یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 82 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، تاہم دہشت گردوں کی بڑی تعداد کے پی میں ماری گئی۔ ان کارروائیوں کے بعد سرحدی علاقوں میں حملوں کی رفتار سست پڑ گئی، تاہم بلوچستان میں اب بھی کچھ کسر باقی ہے، جہاں 22 اپریل کو چاغی مائننگ پروجیکٹ کی سائٹ پر حملے میں ترک شہری سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے۔ منرلز کی دولت سے مالا مال بلوچستان طویل عرصے سے عالمی سازشوں کا شکار ہے، اور ایسی کارروائیاں اب بھی خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی بنیاد سمجھے جانے والی کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان طالبان کا رویہ تبدیل ہونے کی خبریں ہیں۔ پاکستان کا دیرینہ موقف کہ افغان سرزمین ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، افغانستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ انکار کیا ہے۔ وہ کسی عسکری گروپ کو پناہ نہیں دے رہے، تاہم اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کابل اس حوالے سے باقاعدہ کریک ڈاؤن کی تیاری کر رہا ہے۔ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ذرائع کے مطابق حال ہی میں افغان حکومت کے اعلیٰ حکام کا اجلاس ہوا، جس میں سخت ہدایت دی گئی کہ افغانستان میں موجود تمام ٹی ٹی پی اور غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا جائے۔ یہ خبریں بھی ہیں کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے متعدد اراکین اور ان کے خاندانوں کو گرفتار کر کے افغانستان کے اندرونی علاقوں کی طرف منتقل کیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ، یہ پیش رفت اس آپریشن کے بعد سامنے آئی، جس میں پاکستان نے افغان سرزمین دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر نشانہ بنایا، اور اس افغان سرزمین پہ باقاعدہ ان جگہوں کو نشانہ بنایا جو کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بنی ہوئی تھیں۔ پاکستان کی انفارمیشن منسٹری کے مطابق اپریل کے آغاز تک اس آپریشن میں 800 دہشت گردیوں کو ہلاک کیا گیا اور 286 ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، جبکہ تجزیہ کاروں کے مطابق چین کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اورمچی مذاکرات نے بھی ٹی ٹی پی جیسے گروپ کو کچھ لگام ڈالی ہے۔ پاکستان کے لیے عمدہ، بہتر اور ایک بہت پازیٹیو خبر پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب عامر رانا، تجزیہ کار ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، ریسرچر ہیں آن سیکیورٹی افیئرز۔ بہت شکریہ عامر رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اپریل کے اگر ہم نمبرز دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے مارچ دیکھ رہے ہیں، اور اس دوران جو پاکستان کی فورسز کی کارروائی ہے جس میں کہ نشانہ بنایا گیا ہے ٹیررسٹ سیف ہیونز کو پاکستان کے اندر بھی بلکہ افغان سرزمین کے اندر بھی، اوورآل اس کے بڑے پازیٹیو اس وقت ہمیں ایمرج کر رہی ہے ٹرینڈز کے، دہشت گردی میں کمی آ رہی ہے، واقعات میں سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے۔ جی بالکل، اگر آپ تو یہ پچھلے کچھ ہفتوں کا ڈیٹا دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ
काफी कमी वाक़या हुई है, और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला में नंबर्स में कमी आई है। लेकिन एक चैलेंज जो साथ-साथ बड़ा बड़ा होता जा रहा है वक़्त के साथ-साथ, वो बलूचिस्तान के अंदर है, जिसकी तरफ आपने खुद भी इशारा किया। तो चैलेंज तो अपनी जगह के ऊपर है, और उसमें इसको देखने के कई पहलू हैं कि पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी, और जो क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हैं, उसने किसी हद तक तालिबान को अपने रवैये के ऊपर गौर करने के ऊपर मजबूर किया है। लेकिन वो मुकम्मल अभी तक रिव्यू नहीं किया, और अभी कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है कि वो टीटीपी को अबैंडन करने जा रहे हैं या वो उनको निकालने के लिए जा रहे हैं। अभी भी आज भी जो शायद इस्तांबुल में बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, और बात वहीं पे फंसी हुई है जहां पे उर्मुची में थी कि वेरिफिकेशन का कोई मैकेनिज्म हो, और अभी तक वहीं से ही बात आगे नहीं जा रही। तो चैलेंज को पाकिस्तान की काविशें अपनी जगह के ऊपर हैं और बड़ी मौसर नजर आ रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से, खास तौर के ऊपर इसको मार्च के पहले हफ्ते से ऑनवर्ड। लेकिन अभी भी चैलेंज अपनी जगह पे है, इसके लिए बहुत कुछ करने के लिए अभी बाकी है। अच्छा, ये जो हमने एक फेवरेबल सिचुएशन देखी है, लिटरली काफ़ी जो है रेन इन किया गया है टेररिस्ट को, जो ख़ास तौर पे केपी में और केपी से मुल्क कबायली इलाके जो साबिका, और फिर अफ़गानिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो रही थी, ओवरऑल इसमें जो है फ़र्क पड़ा है, और टीटीपी के प्रोफाइल में भी बड़ा फ़र्क पड़ा है, ख़ास तौर पे केपी के हवाले से। जो ये कामयाबी हमें जिस अंदाज की और जिस स्केल की केपी में मिली है, उस स्केल की कामयाबी को कि बलूचिस्तान में भी अब जो एक छोटे इंसिडेंट्स होते थे वो अब काफ़ी हद तक कम हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि ये अभी वाक़या हो गया, ये चागी वाला, ये इस किस्म की जो प्रोफाइल हाई प्रोफाइल वाक़यात है, वो फिर भी चाहे महीने या 2 महीने में हो जाना, उसमें उसको उसकी एलिमिनेशन या उसमें बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट कमी ना आने की क्या वजह है, जबकि केपी में जो कामयाबी हो रही है इसकी क्या वजह है? केपी के अंदर कामयाबी को उसको भी गेज करना लॉन्गर टर्म के अंदर, वो भी अभी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर आप ये सिर्फ चंद हफ्तों का डाटा लेके इसके ऊपर फैसला कर लें कि ये बहुत ही अच्छी सक्सेस जा रही है, तो ये शायद ये दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि अगर लास्ट क्वार्टर जो अक्टूबर से दिसंबर तक का देखें, और वो बड़ा क्रिटिकल था, और फिर जनवरी से मार्च और अभी अप्रैल को इंक्लूड कर लें, तो इस 4 महीने में जो केपी के अंदर भी आपको लगेगा कि अटैक्स जो हैं वो बढ़े हैं। इसमें जो टीटीपी का फैक्टर है वो थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए है कि इसके अलावा नए एक्टर्स जो हैं वो आगे हैं इधर, खास तौर पे ऊपर गुल बहादुर ग्रुप का नाम हम बार बार सुनते हैं, और इत्तेहादुल मुजाहिदीन, उसमें काफी सारे छोटे ग्रुप शामिल हो गए हैं, वो जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये पूरी जो दहशतगर्दी अपनी शक्लें तब्दील कर रही है, और एक जो मुसलसल हम पिछले 6 महीने से क्रिटिकल फैक्टर देख रहे हैं, जो चैलेंज है आने वाले दिनों में भी, और पाकिस्तान जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उसको बड़ा क्रिटिकली देख रही होंगी, वो ये कि क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल बढ़ गया। अभी कल भी जो है वो हंगू के अंदर भी जाके उन्होंने 3 अटैक्स किए, और ये उस बल्क के स्टाइल में कर रहे हैं जैसे हम सीरिया के अंदर भी देखते रहे हैं इस किस्म के अटैक्स। तो ये बड़ा खतरनाक पहलू है। उसमें होगा ये कि आप जो है वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट को, आईओबीएस जितने भी आप करते हैं, उसकी पूरी नेचर चेंज हो जाएगी, उसको बाईपास कर लेंगे, और ह्यूमन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगी। जो लास्ट ईयर का जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी दहशतगर्दी की जंग के अंदर, वो थी यही कि वो पहला साल था 2025 2001 से लेके, कि जिसमें सबसे ज्यादा एक साल में जो है मिलिटेंट टेररिस्ट मारे गए थे, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लॉसेस भी थोड़े से इंक्रीज हुए थे, लेकिन वो उन टर्म्स के हैं। उसके बाद हमने बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज देखी है इनके टैक्टिक्स के अंदर, कि ये इसको पूरा जो है एयर स्पेस के अंदर लेके जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही नए तरीके का चैलेंज है। और हमें पता है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ती हैं, बॉर्डर्स के ऊपर पैरामिलिट्री है, मिलिट्री भी कुछ जगहों के ऊपर है, सीटीडीज हैं, उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है। और ये मिल कहाँ से रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वो लिंक है जिसको देखने की जरूरत है। वो जाहिर है कि
तालिबान का भी वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे जो दूसरे एक्टर्स हैं वो भी, और यही जो सूरत हाल जो फ्यूचर के अंदर नजर आ रही है, और ये जो तब BLA का ऑपरेशन था हेरब 2, उसमें भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स सामने आए कि ये जो एरियल डिवाइसेस हैं उनका जो इस्तेमाल है वो बढ़ रही है। मतलब ये कि ये जंग खत्म नहीं हुई, और इसमें दोनों जो हमारी पॉलिटिकल एंगेजमेंट की स्ट्रेटजी है उसको भी देखने की जरूरत है, उसको रिवाइज करें। और दूसरा जो हमारी पूरी ऑपरेशनल किनेटिक अप्रोच है, शायद अब वो वक्त आ गया है कि अब नया चैलेंज आया है तो उसके मुताबिक उसको एडजस्ट किया जाए, एड्रेस किया जाए। अच्छा, ये जो अगेन जैसे कि हमने कहा कि अप्रैल मार्च, और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि हमें एक एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर देखना होगा कि किस हद तक कामयाबी होती है। मगर डेफिनेटली ये जो अर्ली सिग्नल्स आए हैं पिछले कई हफ्तों के, वो जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा कि वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत इनकरेजिंग है, पर्टिकुलरली KP में। बलूचिस्तान क्या एक ओवर दी व्यू बताइए कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और वहाँ की जो टेररिज्म है वो अब उसकी शेप एंड फॉर्म क्या हो रही है? वो भी खासी चेंज हो गई, उसको टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो वही चीजें कुछ हम देख रहे हैं। एक पूरा जो यहाँ पे बाकी मिलिटेंट्स के साथ हो रहे हैं, लेकिन उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो एक तो ज्योग्राफी का एडवांटेज है, फिर ये कि एक जो बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है जिसकी तरफ जाहिर है कि बलूचिस्तान में जो हमारे इदारे हैं वो भी इसको देख रहे हैं, वो पब्लिक सपोर्ट जो है वो खासी ज्यादा है। TTP का थ्रेट इसलिए कंपैरेटिवली कम है उसका स्केल, कि इसको वो पब्लिक सपोर्ट नहीं है जो एक दौर में कबायली अजला में होती थी या हमारे मजहबी इदारों में होती थी। वो उसकी सपोर्ट कम हो रही है, जिसकी वजह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी लॉन्गर टर्म के अंदर जाके बड़ी इफेक्टिव होगी पाकिस्तान की, और TTP जैसे ग्रुपों की जो सरगर्मियां कम होंगी। लेकिन बलूचिस्तान का ये वाला जो पहलू है ये बहुत ही क्रिटिकल है, और उसके लिए जाहिर है कि जो कुछ इस किस्म के प्लान्स बलूचिस्तान में बना रहे हैं कि इंटीग्रेशन हो, डायलॉग हो, और सोशल सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए काफी सारी चीजें हो रही हैं। और देखें कि इसमें सिर्फ रिफॉर्म से ही मसला हल हो जाए और सोशल सेक्टर की, तो अगर कुछ अहदाफ हासिल हो जाएं तो इससे अच्छी क्या बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर राना।